قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کی مکمل اجازت دے دی ہے۔ فورم نے بھارت حملوں میں شہید معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، رات گئے بھارت کی جانب سے جو بزدلانہ کاروائی کی گئی رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اس پر اب قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا۔ قبل ازیں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا اور جوابی کاروائی کے نتیجے میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ نہ صرف جو بیش قیمت طیارے تھے ان کو زمین بوس کیا گیا، بلکہ جو پوائنٹس تھے جہاں پر نشانہ بنانا چاہیے تھا پاک فوج نے وہ بھی کیا۔ تاہم قومی سلامتی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں بھارت کے حملوں میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کے اشتعال بلا بزدلانہ اور غیر قانونی جنگی اقدام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سنگین صورتحال پر غور کیا ہے۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب جو ہے وہ بھارتی مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختار حدود میں متعدد مقامات پر مربوط میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے، جن میں پنجاب کے شہروں سیالکوٹ، شکرگڑھ، مرید کے، بہاولپور اور آزاد جموں و کشمیر کے علاقے کوٹلی اور مظفر آباد کو شامل ہیں۔ یہ بلا اشتعال اور بلا جواز حملے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے، جن کی بنیاد جھوٹے دعوے یعنی نام نہاد دہشت گرد کیمپوں کی موجودگی پر رکھی گئی تھی۔ جی راؤ دلشاد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ واہگہ بارڈر زیرو لائن سے متصل دیہاتوں کے مکین ملکی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ کہتے ہیں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گاؤں جہاں والا کو پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسن علی سے۔ جی حسن۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے پاکستان کے نہتے اور معصوم شہریوں پر جو گزشتہ رات اشتعال انگیزی کی گئی اس کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں واہگہ بارڈر سے متصل گاؤں جو کہ زیرو لائن سے متصل بھی ہے، جٹاں والا کھو، اور یہاں پہ اگر بات کی جائے تو یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ملک کو نہیں چھوڑیں گے، اور وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع جو ہے وہ کیا جائے گا، اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ علاقہ مکین جو ہے موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایک دفعہ پھر سے بھارت نے جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی ہے، کیا کہیں گے؟ بزدل دشمن نے رات دی تاریخی دے وچ انہاں حملہ کیتا ہے تے انشاءاللہ ایسی فوج دے نال ہاں تے انشاءاللہ نہیں جائیں گے، بارڈر تے رہاں گے، اسی لڑن نوں تیار ہیں فوج دے۔ کیا کہو گے؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پورا ان کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ علاقہ مکین جو ہے موجود ہیں، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے خاص طور پہ جو بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی ایک مرتبہ پھر سے کی گئی، اور یہ بزدلانہ حملہ ہم اس کو کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ بالکل، یہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پہلے شروع سے یہ بزدل رہے ہیں۔ انہوں نے جب بھی لڑائی کی ہے نا پاکستان سے، انہوں نے بزدلانہ کی ہے، رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتی ہیں، اور الحمدللہ 3-4 جہاز گرائے ہمارے جوانوں نے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی فوج کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور سارے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ۔ جی جیسے کہ میرے ساتھ علاقہ مکین جو ہے موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر دم جو ہے وہ اپنے وطن عزیز کا دفاع جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ واہگہ بارڈر زیرو پوائنٹ پر بھی دلچسپ صورتحال ہے، اور واہگہ بارڈر زیرو پوائنٹ پر بھارتی گاؤں کے مکینوں نے علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عثمان خادم کمبو۔ عثمان خادم بتائے گا کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت بھانو پنڈ میں موجود ہوں۔ یہ آخری گاؤں ہے واہگہ بارڈر کے اوپر پاکستانی حدود میں، یہ مورچہ ہے، اور اس سے آگے انڈین جو ہے وہ ٹیریٹری ان کی زمین ہے۔ اس وقت وہاں کے گاؤں خالی کر لیے گئے ہیں۔ 3 دن سے ان کے مندروں میں گھنٹیاں تک نہیں بجی۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے شہری موجود ہیں بھانو پنڈ کے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیا جذبات ہیں اس وقت آپ کے، اور کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ ماحول ہمیں تو کوئی پریشانی ہے نہیں ادھر، لیکن 3 دن پہلے اعلان ہوا تھا، یہ ساتھ ہی روڈا والا گاؤں ہے انڈیا کا، ان اعلان ہوا تھا کہ یہ گاؤں خالی کر دیں، بچے بچے اپنے پیچھے لے گئے ہیں وہ، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی کہ جنگ انڈیا جنگ کر رہا تھا، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ وہ 3 دن سے خالی ہے گاؤں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا زیرو پوائنٹ پہ جا کر
बिल्कुल कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। हमारे सारे बच्चे तो मंदिरों में भी घंटियां बंद हो गई हैं, अब 3 दिन से आवाज नहीं आ रही है अब तो बिल्कुल। तो हमें पता लग गया कि वो निकल गए, ऐलान करवाया था यहाँ, ऐलान हमने सुना था, करीबी तो है बिल्कुल, ऐलान आवाज सुनती है इधर, तो वो निकल गए। 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान करवा दिया था, बीवी बच्चे अपने माल डंगर ले जाओ पीछे, मंदिर में ऐलान करवाया था, तो हमें कोई परेशानी नहीं, वो निकल गए। हमारे बच्चे भी, हम भी खुद सारे इधर काम काज भी कर रहे हैं, वो तो छोड़ गए जमीन गंदुम भी छोड़ गए। हमारी तो इधर गंदुम भी, हमने तो इधर ही रहना, हमने नहीं जाना, हम फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं इधर। जी बिल्कुल, पाक फौज के साथ पाकिस्तानी शहरी शाना बशाना खड़े हैं, अपने गांव, अपनी सरजमीन पे मौजूद हैं, अपने गांव छोड़ के नहीं भागे। जिस तरह से भारतीय गांव साथ ही आगे मौजूद है, थोड़ा सा फासला है, यहाँ पे ये मोर्चा ऐसे के ऊपर खड़े होकर नजर आता है। वहां के मंदिरों की घंटियां खामोश हैं 3 दिन से। शहरी, बुजुर्ग, बच्चे, खातीन सब गाँव छोड़ के जा चुके हैं, उनके जवान गाँव छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी यहीं पे मौजूद हैं, पाक फौज के साथ मौजूद हैं और उनको जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। बहुत शुक्रिया उस्मान। भारतीय जायद के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की है। रैली में शुरा की कसीर तादाद में पाकिस्तानी परचम थामे शिरकत, शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। ज़ियाउद्दीन अंसारी की जानिब से ये कहा, क्या उनका मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। भारतीय जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर निकल आई है। जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली जा रही है। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे शिरकत की है और साथ ही साथ पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान ने जिस तरह से रात की तारीखी में हमला किया है, पाक फौज को क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की 6 से ज्यादा मुकामात पर हमले किए हैं। शहरी आबादियों पर क्रूज मिसाइल फेंके गए हैं, जिसकी वजह से 26 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसी जगह पर बमबारी की गई है जो जहां पर आबादी है, और आबादी के ऊपर और मसाजिद के ऊपर हमला करना दुनिया के किसी कानून में भी जायज नहीं है। इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस जवां मर्दी के साथ अटैक किया है और रिवर्स जो है वो उनके 6 तैयारे मार गिराए, हम इस मौके पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि लाहौर के शहरी नहीं, पूरे मुल्क के शहरी अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। आप बहादुरी के साथ भारत का मुकाबला करें, इंशाल्लाह कौम आपकी पुष्ट पर खड़ी है। तो कुछ है वो आपने सुनी, और इसी तरह से इनका पाक फौज को यही पैगाम है कि वो पूरी जवान मर्दी से दुश्मन का मुकाबला करे। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम अवाम जो है वो पाक फौज के शाना बशाना। बहुत शुक्रिया समरा। पाक भारत कशीदगी पर अवामी नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। MP गजाली सलीम भट्ट ने भारतीय बुज़दिलाना हमले की मसम्मत की है। पाकिस्तानी अफवाज हमारा फ़ख्र हैं, उनके साथ खड़े हैं। गजाली सलीम भट्ट की जानिब से मजीद कहा गया कि फ़ौज जो भी फैसला लेगी हमें कबूल होगा। अरबाज खान इस हवाले से हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। जी अरबाज। गजाली सलीम भट्ट के हमरा जिनसे जो भारत की जानिब से शर्मनाक हरकत की गई है उसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, जो भारत ने किया है और उसके साथ साथ जो पाक अफवाज है उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत जो है उसने फिर वो चूहों वाली हरकत की है और उसी तरह वो रात को बिलों में से निकले हैं और ये जो उन्होंने हरकत की है इसका भरपूर पाक फ़ौज ने जवाब दिया है। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज के उन जवानों के साथ खड़े हैं जो इस वक्त महाज पर हैं। हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है उनके साथ। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की अफवाज है तो पाकिस्तान है, ये मैं हमेशा से यही कहता हूँ और यही कहता रहूँगा। और आज पूरी कौम जो है वो किसी पार्टी में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना गजाली सलीम भट्ट साहब का ये कहना है कि भारत की जानिब से एक शर्मनाक हरकत की गई है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि पाक फौज के साथ वो। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। भारत के रात में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले पर वकला की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और भारतीय जायद पर वकला ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ये एक बहुत गैरतमंद कौम को और बड़ी बहादुर कौम को ललकारा है। हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की उनके साथ हम हमला करें या कुछ। अब उन्होंने हमला किया है, उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है और आइंदा भी अगर हमला दोबारा कोई उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरी कौम फ़ौज के साथ है।
दुश्मनों तुमने किस कौम को ललकारा है, कुरान है जिनके सीनों में और तौहीद का जिन पे साया है। ये बुज़दिल जो हिंदू हैं ये जानते नहीं कि हम किस कौम से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज एक इंतहाई बहादुर कौम है, एक इंतहाई बहादुर दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, जो कि जज्बा ईमान और वतन की मोहब्बत और अपने अवाम की हिफाजत के लिए ये 24 घंटे हम सो रहे हैं वो जनाब जाग रहे हैं। तो ऐसी फ़ौज के होते हुए हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हमारी फ़ौज है तो हम हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और तारीख़ गवाह है कि हमने हमेशा अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत का जो बेड़ा उठाया था। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह उसका रिस्पॉन्ड किया और जो सिचुएशन तकाजा कर रही है, यकीन करें ईमान भी सलामत है, हौसले भी जवां हैं। और ये भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी ऐसी शख्सियत जो ये चाहती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोसीड करे, वो ये याद रखे कि हम मुत्तहिद हैं। सारे बाहमी इख्तलाफात बुला के अपने मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम के लिए और इसकी आज़ादी के लिए तन मन धन से वसाइल से हाज़िर। रात के अंधेरे में इंडिया का बुज़दिली का मुजाहरा, पाकिस्तान का इंडिया की जारियत का भरपूर जवाब, तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज ने दुश्मन फ़ौज को भरपूर जवाब दिया। उलमा कराम की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। जो रात जो है पाकिस्तान पे हमला किया है, हम तमाम मसालिक के उलमा जो हैं अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस्लाम जो है हमें इस बात का दर्स देता है कि इत्तेहाद रखो, सुलह और रवादारी का दर्स देता है, लेकिन जब सरहद क्रॉस हो जाए तो फिर कहता है वह आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है उसे तैयार रखो। तो हम सब जो हैं अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि वो सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हम मिंबर व मेहराब में उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। रात की तारीकी में इंडिया ने हमला किया, दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज पूरी कौम अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ है, पूरी कौम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक है, वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी का जज्बा रखती है। पूरी कौम जो है उसका यही पैगाम है कि दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाए। कौम की दुआएं अपनी फ़ौज के साथ हैं। वो नौजवान जो इस वक्त बर्री, बहरी या फ़ज़ाई मकामात पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के दिफा के लिए कोशा हैं, कौम उनके लिए दुआगो भी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है और अल्लाह को ये कभी भी पसंद नहीं होगा कि इस पे किसी की भी किस्म की कोई आफत और मुसीबत आ जाए, क्योंकि अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है और इसको बनाने वाला बानी जो है मोहम्मद और अली है। तो अल्लाह को ये दो नाम भी बहुत महबूब हैं, लिहाजा मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसे बनाया था तो बनाया ही इस्लाम के नाम पे था। लिहाजा अल्लाह कभी भी इस्लाम को नाबूद होते नहीं देखता। लिहाजा इसकी जो मसलन हिफाजत के लिए मामूर किया गया है, अल्लाह की तरफ से बिलाखिर इंतखाब है मुल्क का भी, कौम का भी और कौम के मुहाफ़िज़ीन का भी।